Hello friends, so welcome back again. So as you can see behind me today, we'll be starting with a fresh topic, a new topic, which is national income accounting. National income accounting, and this is going to be our first attempt to understand the very first thing that we need to know about the economy, right? So what we are trying to do is we are trying to look at the first macroeconomic concept that we have, which you can say in terms of output or in terms of production of the economy, right? And we'll be attempting to find out what is the income of a nation here, as the topic name itself tells you, right? We'll be looking to find out the income of a nation here, right? That is going to be our attempt. अब इस यूनिट में, ठीक है, मेजरली हम पैरामीटर्स की बात करेंगे. We'll be talking about parameters like GDP, GNP, NDP, NNP, right? But समझिएगा that majority of the aspirants, they keep running behind these parameters only, right? I'll explain you the difference between all four of them. But our purpose of studying this is not just to know these parameters. ठीक है ना? हमारा पर्पस केवल इन पैरामीटर्स को जानना नहीं है. हमारा पर्पस यहाँ पर यह है कि इन पैरामीटर्स के बाद जो असेसमेंट आता है, राइट, द असेसमेंट दैट कम्स आफ्टर दीज पैरामीटर्स, दैट व्हेन यू से द इकोनॉमी इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट, that for the past 5 years GDP is experiencing growth rate, right, or GDP is growing at this rate. So what does that particular phrase means, right? That should be our attempt to understand. So at the end of it all, right, जब हम ये यूनिट खत्म करें, तब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर होनी चाहिए कि सर अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, व्हाट डज अ ग्रोइंग इकोनॉमी मीन, राइट? इफ एन इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग, इफ इट इज विटनेसिंग लेट्स से रिसेशन, देन व्हाट डू वी मीन बाय रिसेशन, राइट? अगर इकोनॉमी में रिसेशन नहीं है, अगर इकोनॉमी डिफ्लेट ही हो जा रही है, राइट, श्रिंक कर रही है, तो व्हाट डज श्रिंकेज ऑफ एन इकोनॉमी मीन? तो ये कुछ बेसिक चीजें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है? सो इस यूनिट में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा बताया आपको, राइट? सो विल बी लुकिंग अप एट टॉपिक्स लाइक द पैरामीटर्स फर्स्ट, parameters like GDP, GNP, NDP, NNP, ठीक है? NNP, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट. सो ये चार पैरामीटर्स तो देखने ही देखने हैं, ठीक है? बट इसके अलावा, राइट, I mean, we are going to read these about them, but we also have to do an assessment here, right? That out of the four, which parameter do you think is going to be the best, right? Why do we majorly use GDP kind of a thing? So एक assessment भी करेंगे, एक short assessment kind of, ठीक? और assessment के बाद हम क्या करेंगे? हम will basically try to find out these parameters at factor cost and market prices. Factor cost and market prices. Once we are done with this, then we will go for the three methods. जो तीन तरीके हैं, three methods of calculation, है ना? Plus, I will also be explaining you what are the recent changes that have been made. कुछ recent changes किए गए हैं. Recent का मतलब ये है कि साल 2015 में हमने कुछ change किया. इस पर यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था. फर्स्ट क्वेश्चन इन द ईयर 2021 मेंस वाज दिस ओनली, दैट इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी व्हाट हैज बीन द चेंज बिफोर 2015 एंड आफ्टर 2015. सो ये भी देखेंगे चेंजेस क्या किए गए हैं. एंड देन वी विल गो टू रियल एंड नॉमिनल जीडीपी. I will also try and cover up things like green GDP here, ठीक है? ये तो करेंगे ही करेंगे, साथ में ग्रीन जीडीपी जैसी टर्म भी कर लेंगे. कई बार हम ब्लैक इकोनॉमी पढ़ते हैं या ब्लैक मनी के टर्म से पढ़ते हैं, शैडो इकोनॉमी की बात करते हैं, वो भी देख लेंगे. सो वी विल लुक एट ऑल दीज पेरिफेरल टर्म्स एट द एंड. सो एंड में सारी टर्म्स जो फीचर करती रहती है न्यूज़पेपर्स में, इसको भी देख लेंगे. ग्रीन जीडीपी हमारा ग्रीन अकाउंटिंग ही है, राइट? दिस इज वन ऑफ द न्यू मेथोडोलॉजीज दैट हैज बीन that has been doing the rounds in newspapers also. That is quite popular actually. Western countries में इसके ऊपर suggestions आ रहे हैं, right? Pressure groups force कर रहे हैं countries को that we should start measuring green GDP,
ठीक है, वी शुड स्टार्ट यूजिंग द ग्रीन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, राइट। एक इकोनॉमी की आउटपुट में आप ग्रीन अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी यूज करिए, नॉट जस्ट जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा टॉपिक का असेसमेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स कम टू द टूल्स टू मेजर नेशनल इनकम, ठीक है, द टूल्स टू मेजर नेशनल इनकम, ये हमारा पहला टॉपिक है। अब जब हम टूल्स की बात कर रहे हैं, राइट, वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट दीज पैरामीटर्स ओनली, एंड वी नो फॉर अ फैक्ट दैट वी हैव दीज 4 पैरामीटर्स। हमारे पास ये 4 पैरामीटर्स हैं। पहला, जैसे मैंने बताया आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी कह देते हैं, ठीक। सेकेंड पैरामीटर इज माई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, which is called GNP. My third is called net domestic product. इसको हम NDP कह देते हैं, NDP, right? And the fourth one is called net national product. But before I take you into all of these 4 parameters, what I need you to understand is कि सर एक ही चीज़ को measure करने के लिए, just to measure national income, why do we have 4 parameters? हमारे पास ये 4 पैरामीटर्स क्यों हैं, राइट? वाई नॉट जस्ट 1, राइट? तो पहली चीज तो ये समझनी है कि यहाँ पर पैरामीटर्स में कुछ डिफरेंस पॉइंट्स होंगे, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस पॉइंट्स हियर, राइट? एंड टू आंसर दैट क्वेश्चन दैट आई पोज्ड टू यू कि भाई 4 पैरामीटर्स क्यों हैं, लेट मी टेक यू टू, राइट, अ वेरिएबल कॉल्ड एज डिस्टेंस। एक बार जरा इसकी बात कर लेते हैं, है ना। आपको बचपन में पढ़ाया गया था डिस्टेंस के बारे में, सिमिलरली आज हम आपको पढ़ा रहे हैं नेशनल इनकम के बारे में, है ना। तो जरा इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। मैं कह रहा हूं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए मेरे पास पैरामीटर्स हैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ठीक। आपको बचपन में पढ़ाया गया था कि डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम किलोमीटर्स में, मेजर करते हैं फीट में, मेजर कर सकते हैं इंचेस में, है ना। और फिर बाद में बताया गया कि भाई जब हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आ जाती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आ जाते हैं, राइट, तो हम लाइट ईयर्स का उपयोग करते हैं, ठीक। दिख रही है कहानी? कैन यू सी दिस, से द सेम स्टोरी कि भाई यहां पर भी तो हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स हैं टू मेजर द सेम थिंग विच इज डिस्टेंस ओनली, right? So you have to understand this, that it's not the first time that we are witnessing that we have 4 parameters or 5 parameters to measure something. आपने पहले भी ये चीज़ देखी है। और अगर मैं पूछूं कि भाई इनमें से बेस्ट क्या है, राइट, या कौन सा पैरामीटर यूजफुल है, सो द यूटिलिटी इज देयर फॉर ईच पैरामीटर। हर पैरामीटर की अपनी यूटिलिटी है, ठीक। किलोमीटर की भी है, फीट की भी है, इंचेस की भी है और लाइट ईयर्स की भी है। पॉइंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा पैरामीटर यूज करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू दैट आई वांट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द स्क्रीन ऑफ द बोर्ड, भाई किलोमीटर तो लग नहीं सकता, राइट, लाइट ईयर्स भी नहीं लगेगा, किलोमीटर भी नहीं लग सकता, राइट। तुम हद से हद इंचेस लगा सकते हो, फीट भी है नहीं क्योंकि 1 फीट का डिस्टेंस होगा घूम फिर के, राइट। सो मेजरली व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर पैरामीटर. But let's say now I change the equation. I tell you that okay, I want to measure the distance between let's say the sun and planet Jupiter. अब planet Jupiter और sun के बीच का अगर distance बताना है तो यार light years में बता सकते हैं, right? It would not make sense to measure it in terms of kilometers or in feet or in inches, तो भूल ही जाओ, right? Inches में तो number ही नहीं निकाल पाएंगे. So you understand what I am trying to tell you, ठीक? कि कई बार अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग पॉइंट के लिए, अलग अलग यूटिलिटी पर्सपेक्टिव से वी कैन यूज दीज डिफरेंट पैरामीटर्स टू मेजर, राइट, द सेम थिंग, ठीक है। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू नेशनल इनकम, बेस्ड ऑन आवर पर्पस, बेस्ड ऑन व्हाट वी आर ट्राइंग टू असेस, बेस्ड ऑन व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, वी कैन यूटिलाइज दीज डिफरेंट पैरामीटर्स ऑल्सो, ठीक। तो ये तो हमारा पहला एस्पेक्ट हुआ कि भाई पहले तो ये बात डाइजेस्ट करनी पड़ेगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, that we can have different parameters to measure the same thing like this. Next discussion आता है हमारा, ठीक है, next जो discussion आता है हमारा वो आता है इस बात के लेके कि सर इनकम कैलकुलेट करनी है, we have to calculate the income, right? I want to calculate the income, but before I take you to nation, इससे पहले कि मैं आपको नेशन की इनकम निकालना सिखाऊं, ठीक है, एक सिंपल सा एक्सरसाइज करते हैं. लेट्स डू अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज.
लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल. इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की आय निकालते हैं. ठीक है, लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल. एक व्यक्ति की आय निकालते हैं, राइट. चैलेंज ये है, द चैलेंज इज दैट वी कैन नॉट रियली आस्क हिम व्हाट इज योर इनकम. हम इससे डायरेक्टली ये सवाल नहीं पूछ सकते कि भैया तुम्हारी आय है कितनी. ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फॉर्मुलेट अ काइंड ऑफ क्वेश्चनर, राइट. वी हैव टू आस्क हिम सम रेलेवेंट क्वेश्चंस, बेस्ड ऑन हिज आंसर्स वी शुड बी एबल टू कैलकुलेट हिज इनकम. ठीक, तो आप पहली चीज क्या पूछेंगे? सबसे पहले तो भाई मैं इससे पूछूंगा कि सर आपका प्रोफेशन क्या है, क्या करते हो आप? उन्होंने कहा मैं कैब चलाता हूं. मैंने कहा ठीक है, गुड. सेकंड क्वेश्चन क्या होना चाहिए मेरा, राइट? माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट सर व्हेन यू ड्राइव द कैब, राइट, फॉर हाउ मेनी डेज इन अ मंथ डू यू ड्राइव द कैब, राइट? डेज इन अ मंथ व्हेन ही इज प्रोडक्टिव. मैं क्या कर रहा हूं, इनके प्रोडक्टिव डेज मेजर कर रहा हूं कि भाई ये कब जो है प्रोडक्टिव होते हैं. सो ये कहते हैं सर मैं ऑन एन एवरेज अगर आप देखो ना, सो किसी महीने 25 काम करता हूं, किसी महीने 20 दिन काम करता हूं. सो ऑन एन एवरेज आई एम वर्किंग फॉर 22 डेज. 22 दिन मेरा एवरेज ले लो आप. ठीक, 22 डेज इन अ मंथ. मैंने कहा सर गुड इनफ, वेरी गुड. अब तीसरा सवाल, ठीक, मैंने इनसे पूछा कि ऑन एन एवरेज इन अ डे हाउ मेनी राइड्स डू यू टेक. ठीक है, एक दिन में नंबर ऑफ राइड्स दैट ही टेक्स. राइड्स का मतलब समझ गए ना कि भाई इनके पास कितनी बुकिंग आ रही है एक दिन में. सो इन्होंने कहा कि सर नंबर ऑफ राइड्स जो मेरे पास आती है, मैं जो एवरेजली सर्व कर लेता हूं, वो कई बार तो 10 हो जाती है, कई बार 6 हो जाती है. तो मैंने एवरेज ले लिया 8 नंबर ऑफ राइड्स इन अ डे. 8 राइड्स पर डे. ठीक, 8 राइड्स पर डे. इतनी कहानी हो गई. देखो अभी तक मैंने इनसे ये नहीं पूछा कि आपकी आमदनी कितनी है, राइट. आई हैव नॉट येट आस्क्ड हिम व्हाट इज योर इनकम लेवल. और चौथा सवाल मैंने इनसे पूछा कि सर ऑन एन एवरेज आपकी एक राइड की वैल्यू कितनी रहती होगी. वैसे तो मैं खुद भी एस्टिमेट लगा सकता हूं, ठीक है. एक कैब ड्राइवर की एक नॉर्मल राइड जो रहती है, राइट, इट इज समवेयर बिटवीन 200 to 250. ठीक, तो भाई मैं अगर 250 मैक्सिमम भी ले लूं, वैल्यू ऑफ ईच राइड इज इक्वल टू लेट्स से ₹250 पर राइड. 250 पर राइड. अब आप मुझे बताओ क्या आप इनके साल की इनकम निकाल सकते हो? कैन यू कैलकुलेट हिज इनकम लेवल इन अ ईयर? पूरे साल भर की इनकम लेवल निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना. क्या करें, देखो, व्हाट डू आई डू. आई नो ही वर्क्स 22 डेज इन अ मंथ. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने क्वांटिटी निकाली कि भाई ये कितनी नंबर ऑफ राइड्स एक साल में प्रोवाइड करेंगे. क्वांटिटी, राइट, वेयर क्वांटिटी इंडिकेट्स द नंबर ऑफ राइड्स इन अ ईयर, right, and I multiply this with value of each ride, the value of each ride. ठीक, यही बन जाएगा ना हमारा फॉर्मूला. सो कीपिंग दैट इन माइंड, राइट, आई स्टार्ट टू कैलकुलेट कि भाई 22 दिन काम करते हैं तो 12 लिया, 12 इंटू 22 डेज, 22 इंटू 8 राइड्स इन अ डे, 8. ये तो क्या निकल के आ गया, दिस बिकम्स माई क्वांटिटी, नंबर ऑफ राइड्स इन अ ईयर. एंड नाउ आई मल्टीप्लाई दिस नंबर विद वैल्यू पर राइड विच इज माई ₹250 पर राइड. अब आपने देखा मैंने क्या किया, ये तो निकल के आएगा नंबर ऑफ राइड्स इन अ ईयर, राइट. सो ये किसके टर्म में आ रहा होगा, ये आ रहा होगा राइड्स के टर्म में कि भाई x नंबर ऑफ राइड्स आ गई. मल्टीप्लाई करने के बाद आप निकाल सकते हो, है ना. अपना पर्पस वो है ही नहीं. वी डोंट वांट टू कैलकुलेट, वी डोंट वांट टू मल्टीप्लाई एंड ऑल दैट. हमारा पर्पस क्या है, ये देखना कि हमने राइड्स को मल्टीप्लाई किया रुपीस पर राइड से, है ना. सो ये राइड कैंसिल हो जाएगा और फाइनल वैल्यू किसके टर्म में आ जाएगी, द फाइनल वैल्यू विल बी इन टर्म्स ऑफ रुपीज दिस. ये निकल गई इनकी सालाना इनकम. यस और नो? ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया.
नाउ बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल, राइट, बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल, देखो मैंने बिना बिना पूछे इन व्यक्ति से, कैब ड्राइवर से, मैंने इनकी इनकम कैलकुलेट कर दी है, राइट. सो विदाउट, आई मीन, गोइंग टू एवरी इंडिविजुअल एंड आस्किंग देयर इनकम, राइट, कैन आई स्टिल कैलकुलेट द इनकम ऑफ अ नेशन? तो मेरे पास जो पहला हिंट है ना, वो ये है कि मैं हमेशा क्वांटिटी और वैल्यू यूज कर सकता हूं. मैं हमेशा ये क्वांटिटी इनटू वैल्यू जो है, इसको यूटिलाइज कर सकता हूं टू फाइनली कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ ईच एंटिटी इन द इकोनॉमी. ठीक, मैं इसी फंडा को यूज करूंगा. आई विल सिंपली यूज द सेम फंडा ओनली. तो मैंने क्या किया, लेट्स से आई टेक अ नेशन. मैंने एक नेशन लिया, ठीक है, आई टेक अ नेशन. तो ये हो गया मेरा नेशन. सो लेट्स से आई टेक द केस ऑफ इंडिया ओनली. मैंने ले लिया इंडिया का केस, ठीक है. दिस इज माई इंडिया. नाउ विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, आई अज्यूम दैट आई डोंट हैव लाइक एन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स. मैं अज्यूम करता हूं कि हमारे देश में ना कुछ गिने चुने प्रोड्यूसर ही है. जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी सेक आई एम अज्यूमिंग दैट आई ओनली हैव अ फ्यू प्रोड्यूसर्स इन माई कंट्री, राइट. तो मैंने यहाँ पे पहला प्रोड्यूसर ले लिया है एक स्टेट रन कंपनी को जिसका नाम है ओएनजीसी, जिसका नाम है ओएनजीसी, राइट. और ओएनजीसी क्या है? ओएनजीसी अपने आप में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है. इट इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब सरकार के द्वारा चलित कंपनी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है. ठीक. सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, लेट्स से, ऑफ अ प्राइवेट कंपनी which goes by the name of, let's say, रिलायंस. ठीक, कि भाई रिलायंस है, और रिलायंस क्या करती है? रिलायंस हमारे देश में, राइट, एक्सट्रैक्ट कर रही है ऑयल और रिफाइनरी रन कर रही है, और रिफाइनरी के थ्रू पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें बनाती है, राइट. सो ये मेरे पास कैसी कंपनी हो गई? ये हमारे पास डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनी हो गई. ठीक, ये सरकारी डोमेस्टिक कंपनी, यस, ये प्राइवेट डोमेस्टिक कंपनी हो गई. And then I can also take the case of, let's say, a third company which is a completely foreign company, जो कि अपने आप में पूर्ण रूप से फॉरेन कंपनी है. ठीक, सो हम यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से, ऑफ वोडाफोन. वोडाफोन, ठीक, बन गया. अब ये कैसी कंपनी है? दिस इज अ डोमेस्टिक कंपनी, सॉरी, दिस इज अ फॉरेन कंपनी बट इज ऑपरेटिंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. एक विदेशी कंपनी है लेकिन भारत की बाउंड्रीज में ही ऑपरेट कर रही है. अब मान लीजिए कि भारत देश में केवल ये 3 कंपनियां ऑपरेट करती हैं. देयर आर ओनली दीज 3 कंपनीज दैट आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, एंड आई वांट टू कैलकुलेट. मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कैलकुलेट करना कि भाई हमारी कंट्री का आउटपुट कितना आएगा, राइट. सो आई वांट टू कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द नेशन. सो भाई आउटपुट ऑफ द नेशन, डोंट यू थिंक, विल बी इक्वल टू आउटपुट ऑफ दीज 3 कंपनीज ओनली. जितना ये कंपनीज आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, जैसे वो व्यक्ति वहां पर जनरेट कर रहा था आउटपुट अपना, उसी के हिसाब से उसकी इनकम निकल रही थी, राइट. सिमिलरली जो ये आउटपुट होगा नेशन का, वो इन्हीं 3 कंपनीज का आउटपुट होगा, राइट. सो आई कैन सिंपली से इट इज आउटपुट ऑफ 1, आउटपुट ऑफ 2 एंड आउटपुट ऑफ 3. अब निकालना शुरू करते हैं आउटपुट ऑफ 1. सो माई आउटपुट ऑफ 1 इज बेसिकली आउटपुट ऑफ ओएनजीसी. सो हमने ओएनजीसी से पूछा कि सर आप क्या करते हो? ओएनजीसी ने कहा कि सर हम जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वी एक्सट्रैक्ट क्रूड ऑयल. हमने कहा ठीक है सर, कितना कर लेते हो? सो क्वांटिटी के टर्म में, राइट, वही कहानी है ना, मैं क्या यूज कर रहा हूं? आई एम सिंपली यूजिंग दैट सेम थिंग, क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू वैल्यू. ठीक. सो पहले मैंने इनसे क्वांटिटी पूछा कि सर आप कितना क्रूड एक्सट्रैक्ट करते हो? इन्होंने कहा सर हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं 1000 लीटर्स या 1000 बैरल्स, जो भी कहना चाहे, 1000 बैरल्स पर ईयर. मैंने कहा एक बैरल की कीमत, वैल्यू ऑफ 1 बैरल, राइट. So this is, sir, value of 1 barrel, you can take it to be close to, let's say, मतलब assume ही कर रहे हैं, ठीक है, let's say it is close to 700 only, right. So rupees 700 per barrel, rupees 700 per barrel. ठीक है जी. वैसे तो डॉलर के टर्म में भी निकाल सकते हैं, बट हमें डॉलर नहीं चाहिए, हमें ना रुपीज के टर्म में चाहिए, ताकि सब कुछ रुपीज में ऐड हो जाए, है ना. मैं इसको डॉलर के टर्म में लिख सकता हूं. आई कैन राइट इट टू बी, लेट्स से, $60 अ बैरल, $70 अ बैरल. फिर डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करने बैठो, ठीक है. सेकंड आता है, सेकंड कंपनी का आउटपुट. सेकंड कंपनी हमारे पास रिलायंस, जो कि अपने आप में प्राइवेट कंपनी है, राइट. हमने रिलायंस से पूछा कि भाई आप क्या करते हो? रिलायंस ने कहा सर हम ना क्रूड को रिफाइन करते हैं और पेट्रोल निकालते हैं उससे, राइट. तो मैंने पूछा भाई आप कितना क्रूड निकाल लेते हो, कितना आप रिफाइन कर लेते हो क्रूड? सो कहने लगा कि सर हम रिफाइन कर लेते हैं
कुछ डोमेस्टिक आ जाता है, कुछ बाहर से आ जाता है. सो क्लोज टू वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट 2000 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, है ना. और मैंने कहा भाई कितने दाम पे बेच रहे हो? तो कहता है सर हम बेच लेते हैं लेट्स से क्लोज टू 100 रुपीज 100 पर लीटर, रुपीज 100 पर लीटर. ठीक है, नंबर से मत जाना, नंबर्स में बस अज्यूम कर रहा हूं कि भाई कैलकुलेशन के लिए इजी पड़े. ठीक है. और थर्ड आता है हमारे पास कंपनी वोडाफोन. ठीक. सो वोडाफोन से हमने पूछा कि भाई आप क्या करते हो? सो वोडाफोन ने कहा कि सर हम सिम प्रोवाइड करते हैं, हम नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर जो है वो हमारे पास रिचार्ज कर देता है ना, और एनुअल पैक्स खरीद लेता है, साल का एक पैक खरीद लेता है कुछ मिनिमम कॉस्ट पे. तो मैंने कहा आपने कितने लोगों को पैक बेचा? राइट. सो कहते हैं सर हमने अप्रॉक्सीमेटली वी हैव सोल्ड द पैक टू लेट्स से 50,000 पीपल. 50,000 पीपल. मैंने कहा कितने में बेचा? राइट. 50,000 पीपल पर ईयर. राइट. और एक पर्सन कितने का खरीद रहा है पैक लेट्स से? सो दे टेल मी लेट्स से दे आर परचेजिंग इट एट 200 राइट. 200 पर पर्सन, 200 पर पर्सन. ठीक. सो ये रुपीस के टर्म में आ गया. अभी आप ध्यान से देखना. राइट. प्लीज नोटिस दिस वेरी केयरफुली दैट if I don't multiply this with rupees, the problem here would be I would be adding unlike quantities together. समझ रहे हम क्या कर रहे होंगे? हम किलोग्राम को लीटर में और लीटर को किलोमीटर में ऐड कर रहे होंगे. ठीक है, या यूनिट्स में ऐड कर रहे होंगे. जैसे यहां पर होता कि बैरल को लीटर में और लीटर को सिम कार्ड में ऐड कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ पीपल में ऐड कर रहे होते हैं. राइट. सो डिसलाइक चीजें कभी ऐड नहीं होती. आपको आई थिंक 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया होगा ये चीज, है ना, कि भाई डिसलाइक चीजों को ऐड नहीं कर सकते. लाइक्स कैन ओनली बी एडेड विद लाइक्स. किलोमीटर को किलोमीटर में ऐड करोगे, लीटर को लीटर में ही ऐड करोगे, और लेट्स से आप किलोग्राम को किलोग्राम में ही ऐड कर सकते हो. ठीक. सो ये कहानी यहां पर आपको समझ में आनी चाहिए दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू मेक देम लाइक्स. अब देखो ये बैरल कटेगा. राइट. लीटर कट जाएगा. पर्सन यहां पर पर्सन था ना, तो ये पर्सन कट जाएगा. एंड देयर बाय आई विल गेट माई फाइनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज. जैसे कि यहां से पहला नंबर क्या आएगा? O1 विल बी इक्वल टू ONGC 1. राइट. सो इसे मल्टीप्लाई करके हमने निकाल दिया 1000 इंटू 700. ठीक है ना. ये आ गया नंबर रुपीज के टर्म में. O2 क्या आया? रिलायंस के लिए क्या आया? O2. सो O2 विल बी इक्वल टू 2000 इंटू 100. और तीसरा वोडाफोन के लिए क्या आया? O3 विल बी इक्वल टू 50. 4 जीरो पहले इसके, फिर 2 जीरो इसके, और फिर 1 जीरो, 5 2 10 का, है ना. सो ये निकल के आ गई वैल्यू रुपीस के टर्म में. अब आप इसको ऐड कर दो, है ना. यू कैन सिंपली ऐड दिस नंबर एंड यू विल गेट द टोटल आउटपुट. ना सी आई डोंट वांट यू टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑल ऑफ दैट, वो कहानी नहीं कराना चाहता मैं आपसे. बट व्हाट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड वाज दैट we can actually calculate the output of all the entities that we have in the country, right? And if I do that, if I actually add O1 plus O2 plus O3, I can calculate the output of a nation, and based on output, I can calculate the income of a nation in terms of rupees. In terms of rupees. ठीक है ना. जो देश का आउटपुट है उसी के आधार पर देश की इनकम का एस्टिमेशन किया जा सकता है. याद रखिएगा, एस्टिमेशन किया जा रहा है. यहां पर एग्जैक्ट नंबर्स हम नहीं निकालते. एग्जैक्ट नंबर्स इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि पूरे भारतवर्ष में, राइट, इन अ कंट्री सच एज इंडिया which is again you cannot take into account every bit of manufacturing, every bit of processing और every bit of output that is derived. हर किसी को गणना में ले पाना बड़ा मुश्किल है ना. सो यहां पर डेफिनेटली कोई ना कोई बाहर रह जाएगा या किसी चीज को हम नहीं एस्टिमेट कर पाएंगे वैल्यू के टर्म्स में. एंड देयर बाय वी कैन ओनली एस्टिमेट द इनकम ऑफ अ नेशन, और वी कैन ओनली एस्टिमेट द आउटपुट ऑफ अ नेशन. तो आप इस सिंपल इस डायग्राम को याद रखना हमेशा. जब भी आउटपुट की बात हो, जब भी जीडीपी वीडीपी जब भी किसी की बात हो रही हो ना, सबसे पहले यही एग्जाम्पल दिमाग में लेके आना. हम क्या कर रहे हैं? जैसे एक व्यक्ति की आय निकालते हैं वैसे एक देश की आय निकाल रहे हैं. ठीक है, आउटपुट निकाल रहे हैं. हमने इसकी आउटपुट निकाली थी कि टोटल राइड्स कितनी दी इसने साल में, वैसे हमने देश का आउटपुट निकाला. ठीक. अब यहां पर क्योंकि डिसलाइक चीजें हैं तो इसको हमने वैल्यू टर्म में डिराइव कर लिया, इसको भी हमने वैल्यू टर्म में डिराइव कर लिया, और यही वैल्यू क्या बनेगी? दिस बिकम्स माय नेशनल इनकम. ठीक है. अब इसी में थोड़ा सा मैं फेरबदल कर रहा हूं. राइट. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग टू यू जीडीपी. ठीक है.
तो मैं आपको जीडीपी समझाना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपके सामने मैजिक करूँगा, समझना, ठीक है? ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट। सो हमने कहा हमें जीडीपी बता दो क्या है, व्हाट इज जीडीपी ऑफ इंडिया। इफ आई ऐड 1, 2 and 3, इफ आई ऐड द आउटपुट ऑफ ऑल दीज 3 कंपनीज, आई विल गेट माई जीडीपी। अगर मैं इन तीनों कंपनीज का आउटपुट, जो कि बस यही है 3 भारत में, पूरे भारत में बाउंड्री के अंदर, ठीक है, अगर मैं इन तीनों का आउटपुट ऐड कर दूं, आई विल बेसिकली गेट माई जीडीपी, ठीक है? सो इफ यू आस्क मी व्हाट इज जीडीपी ऑफ इंडिया, सो जीडीपी ऑफ इंडिया इज सिंपली द आउटपुट, वो भी कैसा, फाइनल आउटपुट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स within the boundary of India, B मतलब बाउंड्री ऑफ इंडिया। कब? एक टाइम फ्रेम चाहिए, इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ फाइनेंशियल ईयर। सो दिस बिकम्स माई जीडीपी, ठीक है? मतलब अगर हम ये ना देखें कि कंपनी बाहर से आई या डोमेस्टिक है या सरकारी है, राइट, बस हम क्या देखें, हम केवल और केवल भारत की बाउंड्रीज को देखें, राइट? आई ओनली कंसिडर द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, ठीक? ये जो बाउंड्रीज नजर आ रही है ना हमने जो बनाई है, ये माफ कीजिएगा, मतलब इतनी ड्राइंग इतनी कुछ खास है नहीं हमारी, बट ठीक है, जो भी हमारा अटेम्प्ट है। सो ये जो हमने बाउंड्रीज बनाई है देश की, राइट, सो बेस्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, राइट, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं कंट्री के अंदर, 1, 2, 3, 4, इफ आई टेक द आउटपुट ऑफ एवरीवन इन अ फाइनेंशियल ईयर, आई कैन गेट जीडीपी ऑफ द कंट्री। मैं निकाल सकता हूं जीडीपी, ठीक है? तो एक बार दोबारा फटाफट से लिख देते हैं जीडीपी को। क्या है जीडीपी? जीडीपी इज टोटल वैल्यू ऑफ ऑल final goods and services, final value of all goods भी, services भी, right, produced within the boundaries of a nation, in a financial year, ठीक है? सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन। बाउंड्री वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब यहीं पर याद रखिएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, मतलब नेशनैलिटी यहां मैटर ही नहीं करती, सो इट डजंट रियली मैटर वेदर अ फॉरेन कंपनी हैज कम इनटू इंडिया एंड इज प्रोड्यूसिंग इन इंडिया। जब तक वो भारत की सीमाओं के अंदर रह के प्रोडक्शन कर रही है, तब तक हम उसे भारत के जीडीपी में रखेंगे। अगर कभी छोड़ के चली गई, जैसे फोर्ड कंपनी छोड़ के चली गई है, तो अब हम उसे जीडीपी में नहीं लेंगे। सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है? अब इसी को अगर फॉर्मूला स्टेट में अगर हमें लिखना हो, इफ आई वांट टू राइट दिस इन फॉर्मूला स्टेट, ठीक है, तो फॉर्मूला के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, दैट जीडीपी इज सिंपली इक्वल टू summation, where summation is over I, where I is all final goods and services produced within boundaries in a financial year, irrespective of nationality, ठीक है? irrespective of nationality। और समेशन किस पे लगाऊं? समेशन लगाता हूं Q पे, Q ऑफ I इंटू प्राइसेस ऑफ I। मतलब मैंने क्या किया है, मैंने क्वांटिटी ले ली सभी गुड्स और सर्विसेज की, और प्राइसेस ले लिए। सो Q क्या है? Q इज सिंपली क्वांटिटी, राइट, एंड P represents your prices of each of them। P
P represents prices of each of them. मूल्य रख दो, क्वांटिटी रख दो, राइट। जैसे कि एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी से पूछा तो कहती है 4 तरह की चॉकलेट बनाते हैं, एक नट्स के साथ, एक बिना नट्स के साथ, एक आलमंड के साथ, एक बिना आलमंड के साथ। ठीक है जी। अब हमने कहा 4 तरह की चॉकलेट की क्वांटिटी बताओ, हर किसी का प्राइस बताओ, मल्टीप्लाई कर दो 4 तरह की वैरायटी। तो कह रहा है वैरायटी 1 इंटू प्राइस ऑफ 1। ठीक है, क्वांटिटी बता दिया कि 100 इंटू इस चॉकलेट का दाम है 5, प्लस सेकंड वाली के लिए कहता है कि वो भी 100 बनाते हैं, उसका दाम है 10। ना मल्टीप्लाई कर दो, ऐड करते जाओ, राइट। तो समेशन का मतलब क्या है कि क्वांटिटी 1 इंटू प्राइस 1 प्लस क्वांटिटी 2 इंटू प्राइस 2 प्लस क्वांटिटी 3 इंटू प्राइस 3 प्लस क्वांटिटी 4 इंटू प्राइस 4 प्लस चलाते जाओ, है ना। जितनी कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, जितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, सबको ऐड करते चले जाओ। क्या मिल जाएगा आपको? पूरा का पूरा वैल्यू मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड। इंपॉर्टेंट बात यह है कि केवल फाइनल गुड्स लेंगे। वी आर ओनली गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन द फाइनल गुड्स, वी विल नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द इंटरमीडिएट गुड्स। समझना इसको, फंडे को थोड़ा सा समझना। वी डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों नहीं लेते सर इंटरमीडिएट गुड्स? एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक कंपनी है जो कि अपने पास टायर बनाती है, ठीक है, टायर बनाती है। अब यही टायर गाड़ियों में लगते हैं, कुछ पहले से जो खरीदी गई गाड़ियां उनमें लगते हैं और कुछ नई गाड़ियों में लगते हैं और फिर वो गाड़ी बिकती है। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट। सो लेट्स से आई हैव अ कंपनी XYZ और XYZ कंपनी टोटल 500 टायर बनाती है। ठीक, 500 में से 200 टायर, 200 ऑफ दीज टायर्स दे गो टू न्यू कार्स, ये नई कारों में लग जाते हैं। ठीक, और बचे हुए 300 ये मार्केट में बिकते हैं, राइट। तो जिनके पास पहले से गाड़ियां वो खरीद लेंगे कि भाई हमारा टायर खराब हो गया, हम खरीद लेते हैं इसको, राइट। उन्होंने खरीद लिया, सो ओल्ड कार्स में लग गए। ठीक, अब ये ओल्ड कार्स वाले जो लग रहे हैं ये तो भाई फाइनल हुए, ये तो अपने आप में कमोडिटी परचेज कर रहे हैं ना मार्केट से। जैसे मेरी गाड़ी का टायर खराब हो गया तो मैंने मार्केट से नया टायर परचेज किया एंड आई एम यूजिंग इट टू रिप्लेस माय एग्जिस्टिंग टायर्स। बट लुक एट दिस, ये जो 200 टायर हैं ये तो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स हुए। इसको मान लीजिए टाटा ही खरीद रहा है, टाटा कंपनी यूज कर रही है अपनी गाड़ियों में। ठीक, और फिर अगर हम नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो हम टायर का पैसा अलग से तो दे नहीं रहे, सब कुछ उसी कॉस्ट में इंक्लूडेड है। यस और नो? सो प्लीज अंडरस्टैंड, यू विल नॉट कंसिडर दीज 200 टायर्स व्हेन यू लुक एट जीडीपी। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम टाटा का ऑलरेडी पूछ लोगे कि भैया आपने कितनी गाड़ियां बेची, बोलता है मैंने 100 गाड़ी बेची। 100 गाड़ी की वैल्यू कितनी हुई? एक गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपए, तो मैंने पहले ही ले लिया ना यहाँ पे इसकी कीमत। तो अगर मैं 200 टायर की कीमत और ऐड करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ? आई वुड बी डबल काउंटिंग इट, एक ही चीज को 2 बार काउंट किया जा रहा है प्रोडक्शन में, और डबल काउंटिंग सही नहीं है। ठीक, एक बार टायर की कीमत देख ली, फिर वही टायर जब गाड़ी में लग गया फिर उसकी कीमत निकाल ली, ये तो सही कहानी नहीं है। एक बार बस फाइनल गुड ले लिया गाड़ी, है ना, वहां से ले ली, तो इसको तो भूल जाओ, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको नहीं लेंगे, रिमूव दिस। ओनली दिस विल बी कंसिडर्ड इन जीडीपी, क्योंकि इसका तो वैल्यू गाड़ियों से आ जाएगा, राइट। इन 200 टायर्स का वैल्यू कहां से आएगा? गाड़ी की कीमत से आ जाएगा, और इन बचे हुए 300 टायर्स की कीमत हम डायरेक्टली कंपनी से ले लेंगे। तो कंपनी से ही पूछते हैं, इसीलिए डेटा जब कलेक्शन किया आता है तो कंपनी से यही पूछा जाता है कि भाई आपने कितनी सप्लाई करी है और कितनी मार्केट में दी है बेचने के लिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड। सो गाइज दैट वाज आवर फर्स्ट पैरामीटर जीडीपी। ठीक है, लेट्स मूव ओवर टू द सेकंड पैरामीटर जीएनपी। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने देख लिया, है ना। और डोमेस्टिक में बस एक सिंपल सा चीज हमको याद रखना है, वी हैव टू रिमेंबर दैट इन डोमेस्टिक, जब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, डोमेस्टिक शब्द का ही सही याद रखिएगा बस, दैट व्हाट मैटर्स इज बाउंड्री। हाँ, बाउंड्री मैटर करती है और नेशनैलिटी मैटर नहीं करती, नेशनैलिटी डज नॉट मैटर। बस इतना फंडा याद रखिएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट वी कम टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेट मी टेक यू टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP. Now, the moment you encounter this word national, now things change.
अब चीजें बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी यहां पर, राइट। नाउ व्हेन यू टॉक ऑफ नेशनल, बाउंड्री विल नॉट मैटर। अब बाउंड्री मैटर नहीं करेगी, अब क्या मैटर करेगा? नाउ नेशनैलिटी विल मैटर, नेशनैलिटी विल मैटर। और नेशनैलिटी के टर्म में भी क्या मैटर कर रहा है? नेशनैलिटी मैटर कर रही है विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर आप किसी भी देश का जीएनपी निकालें, राइट, इफ यू आर कैलकुलेटिंग द जीएनपी ऑफ लेट्स से एनी कंट्री, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया ओनली, देन इंडियन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन will be considered. Indian factors of production will be considered, which means land, labor, capital, enterprise. Land, labor, capital, enterprise. Right? Now we understand land is going to stay within India. वो तो बाहर जाएगा नहीं, right? So land के लिए तो कोई problem नहीं है with respect to land at least. Labor ये तो travel कर सकता है. It can travel outside and can work outside and thereby can generate wages outside. Capital can also go outside, can be at work outside the boundary of India. Yes or no? And similarly, enterprise can also go outside. Enterprise can also move outside. We can set up a company outside India also and can generate profit or loss. Right? तो हमें सिंपली क्या करना है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर जो डोमेस्टिकली जनरेट किया गया इनकम है वो तो लेना ही है. वी हैव टू कंसिडर दैट इनकम. But if some income is generated outside India also, in terms of wages or salaries, that needs to be considered. Any interest generated on this also needs to be considered, or any kind of profit or loss generated also needs to be considered. ठीक? तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम वो पुराना वाला एग्जाम्पल अपना ले कि भाई ये भारत में कंपनियां हो गई, ये इंडिया हो गया, ठीक। अब इंडिया में 3 तरह की कंपनी ली थी. पहला हमने लिया था ONGC, राइट. सेकंड हमने ले लिया था रिलायंस को. थर्ड वी हैड टेकन वोडाफोन. तो पहली बात तो जब हम जीएनपी का कैलकुलेशन करेंगे, व्हेन वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, वी विल नॉट कंसिडर वोडाफोन एनीमोर. ठीक, वोडाफोन का प्रोडक्शन हम नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि कैसी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. ठीक. बट एनी कंपनी विच इज प्रेजेंट आउटसाइड इंडिया, लेट्स से जैगुआर. अब आपको पता होगा जैगुआर इज ओन्ड बाय टाटाज नाउ. सिमिलरली रेंज रोवर इज ओन्ड बाय टाटाज नाउ, राइट. सो इफ एनी कंपनी ऑपरेटिंग आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, राइट, इज एन इंडियन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट. या फिर मैं अगर इंडिविजुअल्स की बात कर लूं, मान लीजिए कोई बाहर कोई डॉक्टर है ना, भारत के बाहर रहता है, कोई शेफ है, राइट, कोई फेमस शेफ है, एंड ही हैज अ रेस्टोरेंट इन लेट्स से न्यूयॉर्क इन यूएसए, राइट, देन ऑल ऑफ दिस विल बी कंसिडर्ड इन जीएनपी ऑफ इंडिया. इस सबको जीएनपी में कंसिडर करेंगे हम भारत के. ठीक. सो जीएनपी में, ठीक है, जीएनपी में इफ आई हैव टू राइट द फॉर्मूला नाउ, पहले तो डेफिनेशन लिखता हूं. जीएनपी में क्या आएगा? जीएनपी इज गोइंग टू बी द टोटल value of all final goods and services produced by Indian, or produced by Indian ना लिख रहे हो तो produced by a nation's factors of production in a financial year, irrespective of, वहां क्या था, irrespective of nationality, यहां पर क्या है, irrespective of boundaries. So boundaries don't matter here. ठीक है जी, बाउंड्रीज कोई मैटर नहीं करती यहां पर. यहां क्या मैटर कर रहा है? यहां पर मैटर कर रहा है नेशंस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इफ अ नेशंस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन्वॉल्व्ड, राइट, अगर एक नेशन के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व हैं, राइट, सो आप उसको किस में कंसिडर करेंगे? यू विल बी कंसिडरिंग इट अंडर जीएनपी. ठीक है. नाउ इफ आई वांट टू राइट दिस इन फॉर्मूला फॉर्म, अगर मुझे इसे फॉर्मूला के टर्म में लिखना हो, ठीक है, लेट्स गो टू फॉर्मूला ऑल्सो. एक बार फॉर्मूला के टर्म में भी लिख लेते हैं, राइट. सो जीएनपी क्या होगा?
my GNP simply will be again summation over let's say Q this time, where Q is equal to all final goods and services, all final goods and services produced by a nation's factors of production in a financial year, irrespective of boundary, right? Irrespective of boundary. And now I simply take my Q. So Q of Q है ना, ये वाला Q of Q मतलब क्वांटिटी है ये सिंपली, और यहां ले लें प्राइसेस P of Q, ठीक है। स्टोरी अभी भी वही है, Q क्या है, Q दर्शाता है हमारा क्वांटिटी को, बड़ा Q, राइट, और P दर्शाता है प्राइसेस को, ओके, quantity into prices. So this is going to be the formula of GNP. Now guys, we have calculated GDP, we have calculated GNP. हमने जो है दोनों ही चीजें कैलकुलेट कर ली हैं. We have calculated GDP also, we have calculated GNP also, right? Have you noticed anything similar or anything of a difference between the two? देखो सिमिलर चीज ये है, सेम चीज ये है दैट वी आर स्टिल कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है। पहले सेम चीजें लिखता हूं, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स सर्विसेज। बट जीएनपी का स्कोप क्या है? जीएनपी का स्कोप जो है, ये वैल्यू जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, दे कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया प्लस आउटसाइड बाय इंडियंस, ठीक है ना। क्या कर रहे थे? ओएनजीसी को ले रहे थे, रिलायंस को ले रहे थे, और जैगवार को ले रहे थे, और राइट रेंज रोवर को ले रहे थे। यहां पर जीडीपी में, राइट, वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन इंडिया, है ना, विद इन इंडिया, और इंडिया में हम फॉरेनर्स को भी ले रहे थे, राइट। सो हम यहां पर ओएनजीसी को ले रहे थे, हम यहां पर रिलायंस को ले रहे थे, और यहां पर हम वोडाफोन को ले रहे थे, ठीक। अभी यहां पर किसको ले रहे थे वो भी लिख देते हैं। ओएनजीसी को लेना है, रिलायंस को लेना है, वोडाफोन को नहीं लेना, राइट। हमें रेंज रोवर को लेना है और जैगवार को लेना है। कॉमनैलिटी दिखी? डू यू सी द कॉमनैलिटी? कॉमनैलिटी इज दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, विद इन इंडिया, ये तो है सर कॉमन, राइट। अब देखो ओएनजीसी और रिलायंस, ये हमारा अपना खुद का है, डोमेस्टिक विद इन कंट्री, राइट। तो ये तो है कॉमन, ये दोनों में आएगा, राइट। जो फॉरेन वाला है वो इसमें आ जाएगा, मतलब भारत की बाउंड्री के अंदर जो बाहर से कंपनी आ रखी है, राइट, इफ इट इज प्रोड्यूसिंग इन इंडिया विल बी कंसिडर्ड इन जीडीपी, बट इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग आउटसाइड विल बी टेकन इन जीएनपी, राइट। सो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे सॉल्व करूं, राइट। अगर मैं सिंपली ओएनजीसी प्लस रिलायंस ले लूं, ठीक है, ओएनजीसी प्लस रिलायंस ले लूं, और मैं माइनस कर दूं किसको? वोडाफोन को, माइनस कर दूं वोडाफोन को, और किसको ऐड कर दूं? आई कैन सिंपली ऐड अप रेंज रोवर एंड जैगवार, देन आई विल गेट माई फॉर्मूला। अभी देखना मैं यही करूंगा, राइट। आई विल डू द सेम थिंग ओनली, राइट। मैं क्या करूंगा? मैं डोमेस्टिक लूंगा और डोमेस्टिक में से ये निकाल दूंगा और उसको ऐड कर दूंगा, ठीक। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट कैन आई राइट जीएनपी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। क्या मैं जीएनपी का फॉर्मूला जीडीपी के टर्म्स में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो कैसे लिखूंगा। जीएनपी, राइट, विल बी इक्वल टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। What do I want to add? I want to add a factor income of all Indians who are living abroad. Factor income of all Indians
living abroad, right? And I want to subtract the factor income of all foreigners living in India. Of all the foreigners who are living in India, right? And if you notice this very carefully, अगर आप इन दो पैरामीटर्स को ध्यान से देखिए, right? Factor income of all Indians living abroad and factor income of all foreigners living in India. This is nothing but my NFIA. ये क्या है? ये कुछ नहीं है. This is net factor income from abroad, right? यही तो है factor income of Indians, right, who are living abroad minus factor income of all foreigners living in India, right? So इन दोनों की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं इसको. So my GNP will be equal to nothing but GDP plus net factor income from abroad. GNP will be equal to GDP plus net factor income from abroad. ठीक है? So this is how we can depict, this is how we can write GNP in terms of GDP. ठीक है? Important relation है, याद रखना है आपको. Now guys tell me, ठीक है, let's have a discussion with respect to India only. अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, right, out of the two parameters, GDP and GNP, which one do you think is going to be higher, right? देखो हमारे पास पिक्चर अभी प्री पैंडेमिक की है, right? पोस्ट पैंडेमिक वी आर स्टिल नॉट सर्टेन. सो द पिक्चर बिफोर पैंडेमिक was that our GNP is greater than GDP. हमारा GNP बड़ा है, ठीक है, हमारा GNP बड़ा है. GNP was greater than GDP. क्यों है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल सा है, that our NFIA, net factor income from abroad, is actually positive. And what does this tell you? This tells you that if you look at the number of Indians who are living abroad, who are generating income abroad, that number definitely surpasses the number of foreigners who are living in India. Number of foreigners who are living in India, operating in India, is less as compared to number of Indians who are living abroad and generating income from abroad. So ये relationship आपको याद रखना है, ठीक है? अगर आपको GNP related कभी भी डेटा देखना हो, GDP का तो आपको यहीं मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको GNP related डेटा देखना हो तो आप हमेशा वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर जाकर इस डेटा को चेक कर सकते हैं. सालाना इस डेटा को अपडेट किया जाता है, बट अभी क्या है, पैंडेमिक के कारण डेटा असेसमेंट नहीं हो पा रहा है, राइट? एंड दैट इज व्हाई वी डोंट हैव द अपडेटेड डेटा येट. Okay, so you can always keep checking this World Bank website. There you will find the report that is listing out the GNP of all the countries. Okay, now once you understand this, next topic that we can move to is our third parameter. The third parameter that we have, हमारा जो तीसरा पैरामीटर है, we can move to net domestic product. ठीक है, net domestic product क्या है सर? So let's go to our third parameter, net domestic product. I also want you to look at the fourth parameter, which is net national product. क्या आपको यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है? Do you find any difference, any similarity here? कुछ कॉमन चीज नजर आ रही है? कुछ पहला पढ़ा हुआ लग रहा है? See, मुझे दिख रहा है, right? I can see that domestic word is being used here, national word is being used here, right? जो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ दिस टर्म नेट. हम पहले नेट की जगह ग्रॉस शब्द का उपयोग कर रहे थे, लेकिन अब हम नेट शब्द का उपयोग कर रहे हैं. आई थिंक आप लोग भी अग्री करेंगे, ठीक? सो पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था जीएनपी. वी हैव रिप्लेस्ड इट विद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट. यही तो डिफरेंस किया है, राइट? So if I am able to tell you the difference between gross and net, we will be able to understand both these parameters thereby. Our task now becomes to understand gross versus net.
ग्रॉस वर्सेस नेट, ठीक है। टास्क बहुत सिंपल सा हो गया है, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या काम करते हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ सिंपल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, राइट। लेट्स ट्राई एंड प्रोड्यूस अ सर्विस। एक सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस अ सर्विस, और ये सर्विस है हमारी कैब राइड। सर्विस है हमारी कैब राइड, ठीक। सर्विस है हमारी कैब राइड। नाउ यू टेल मी, राइट, अ कैब ड्राइवर इज गिविंग अस दिस सर्विस, कैब ड्राइवर इज प्रोवाइडिंग अस विद दिस सर्विस, लेट्स से। सो वो क्या कर रहा है, ये व्यक्ति हमें, लेट्स से ही इज प्रोवाइडिंग अस अ कैब राइड, ठीक है, and he is transporting, let's say, two people. He is transporting two people from place A to place B. From place A to place B, right? And he is charging rupees 300 for this ride. 300 रुपये इसने चार्ज करे, ठीक है, दोनों लोगों से। अब फंडा ये है that do you think this 300 rupees is the total output? क्या ये 300 रुपए टोटल आउटपुट है? अगर हम जीडीपी से पूछने जाएंगे तो जीडीपी कहेगा यस सर, ये टोटल आउटपुट है, एंड दैट इज व्हाई आई एम कीपिंग दिस एंटायर रुपीज 300 एज आउटपुट, है ना। इस पे मैंने टैक्स वैक्स लगता रहेगा इस पे ना, वो सब कहानी बाद की है, बट ये 300 रुपए वो है ना, जो बिना टैक्स का अमाउंट है, विदाउट एनी काइंड ऑफ टैक्स, एनी काइंड ऑफ सब्सिडीज व्हाटसोएवर, राइट। सो जीडीपी कहेगा यस सर, 300 रुपए तो बिल्कुल प्योरली ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉस्ट चार्ज की गई है, एंड दैट इज व्हाई आई एम इंक्लूडिंग दिस इन द टोटल कैलकुलेशन, ठीक। बट अगर मैं इस कैब ड्राइवर से पूछूं कि भाई साहब आपको एक जगह से ए से लेके बी तक लेके जाने में क्या आपको 300 रुपए जो ये प्राप्त हुए, इज दिस व्हाट यू आर डिराइविंग आउट ऑफ दिस राइड? क्या आपको 300 रुपए की पूर्ण रूप से प्राप्ति हो रही है? डू यू गेट 300 आउट ऑफ दिस राइड? कैब ड्राइवर कहेगा नहीं सर, आई डोंट गेट 300 आउट ऑफ दिस राइड, राइट। कहेगा सर इवन दो दिस विल कवर फॉर फ्यूल कवर कर लेगा, सब कुछ कवर कर लेगा, यू ऑल्सो हैव टू अकोमोडेट दैट दिस कार इज एक्चुअली कंप्राइजेज ऑफ अ लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स। इस गाड़ी में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स लगे हैं, जैसे क्लच है, ब्रेक है, राइट, क्लच पेडल होता है, ब्रेक है, ब्रेक शू है, राइट। एंड ही सेज सर दैट बिकॉज दिस इज अ मूविंग पार्ट, this will have constant wear and tear. इसमें क्या होगा, निरंतर वेयर एंड टेयर होता रहेगा, ये घिसता रहेगा, और जैसे से वेयर एंड टेयर होगा, this wear and tear also needs to be taken into accommodation. This wear and tear also needs to be taken into accommodation, and thereby he will say that sir, after every year I have to replace the tire of my car, after every 6 months I have to replace the oil of my car, after every let's say 9 months I have to replace the brake shoe of my car. तो उसने सारे रिप्लेसमेंट्स की लिस्ट बता दी। तो हम देख पा रहे हैं कि भाई इस वेयर एंड टेयर के कारण इसको पूरे 300 की प्राप्ति नहीं होती, राइट। ये इसका नेट इनकम नहीं है, इसका नेट इनकम इस नंबर से काफ़ी कम है, राइट। देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जीडीपी जब असेस करता है तो जीडीपी बस वैल्यू देख के पिक कर लेता है, ठीक। जैसे वो चॉकलेट वाला एक कंपनी का हमने एग्जाम्पल लिया था, चॉकलेट वाली कंपनी 10 के एक चॉकलेट बेच रही, हमने 10 पूरी वैल्यू ले ली, बट कंपनी से पूछने गए, right? If we go to the company will say, no sir, the machine in which the chocolate is made, right, where it is mixed, where it is put into, let's say, shapes and sizes, where it is packaged, all these are machines. इसमें सब मशीनों का उपयोग हो रहा है, and because there are all machines here, it comprises of a lot of moving parts, and these moving parts need to be replaced. इनको बार बार हमें replace करना पड़ता है, और जब हम replace करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका कोई cost जुड़ा होगा, right? But GDP or gross fails to identify this. जो ग्रॉस पैरामीटर है वो अपने आप पे फेल हो जाता है इसको इस एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, राइट। एंड देयर बाय वी नीड टू रिजॉल्व दिस, we need to take into consideration this wear and tear. The moment you start taking in consideration this wear and tear, you will have a parameter called as depreciation. आपके पास तुरंत एक पैरामीटर निकल के आएगा, बोलेगा हाँ सर मैं क्या करता हूं, मैं हूं डेविल, आई एम द डीमन, राइट। मैं क्या हूं,
I am the devil, I am the demon. Why? Because of me, the value of everything will basically decrease over the period of time. आप गए दुकान में फोन खरीद के आए, तुरंत बाहर निकले, स्क्रैच लग गया, वैल्यू कम हो गई है ना. तो डीमन क्या है यहां पर? डीमन इज बेसिकली दिस डेप्रिसिएशन ओनली. बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग विल कीप डिक्रीजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. वेयर एंड टेयर को अकोमोडेशन में ले रहा है ना, ये वेयर एंड टेयर को अकोमोडेशन में ले रहा है डेप्रिसिएशन. सो जैसे ही हमने डेप्रिसिएशन को यहां पर लिया, राइट, वंस वी स्टार्ट टेकिंग डेप्रिसिएशन इनटू अकाउंट, व्हाट वी एक्चुअली विल गेट इज नेट. We will actually what we get is net, right? So gross minus depreciation will automatically give you net here. ठीक है. So अगर मैं वापस अपने उसी एग्जाम्पल पे जाऊं, where I wanted to calculate my GDP GNP and I wanted to calculate NDP and NP. So मेरा net domestic product क्या होगा? My net domestic product will simply be equal to my gross domestic product minus depreciation. And what is depreciation here? The depreciation is the loss in value of capital goods, right, due to constant wear and tear that takes place during the consumption or production process. जब कंजम्पशन या प्रोडक्शन की प्रोसेस में किसी भी कैपिटल गुड का कंजम्पशन होता है, राइट, उसे ही हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं. और ये अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, अलग अलग सेक्टर के लिए वेरी करता है. ठीक है. जिस भी इंडस्ट्री में मूविंग पार्ट्स ज्यादा होंगे, याद रखिएगा, मूविंग पार्ट्स ज्यादा होंगे, उस इंडस्ट्री में डेप्रिसिएशन हायर ही मिलेगा. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं, राइट, ट्रकिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो भाई ट्रक में तो कांस्टेंट मूविंग पार्ट्स हैं, वो तो राइट, उसको तो रात दिन चलना ही चलना है. सो उसमें तो रिप्लेसमेंट चलती रहेगी, राइट, एंड देयर बाय डेप्रिसिएशन ऑफ अ ट्रक इज गोइंग टू बी वेरी हाई, है ना. सो ये जो नंबर्स हैं, जैसे हमारे देश में ये नंबर्स जो हैं हर इंडस्ट्री के लिए कौन देता है? दिस इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. ठीक है जी. तो याद रखिएगा इस बात को. ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमारी कंट्री में बताता है हर सेक्टर के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए कि डेप्रिसिएशन का नंबर क्या होगा, और अकॉर्डिंगली उसको ध्यान में रखकर, राइट, हम ग्रॉस उस इंडस्ट्री का लेंगे, डेप्रिसिएशन को ध्यान में रखेंगे और नेट उस इंडस्ट्री का निकाल देंगे. अब हर इंडस्ट्री का नेट आप ऐड करते चले जाओ, आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सिमिलरली आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट. आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट. नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट विल सिंपली बी gross national product minus depreciation again. ठीक. लेकिन इस बार डेप्रिसिएशन कहां लेना है? डेप्रिसिएशन हर उस जगह लेना है जो इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बनाने में लगा है, नॉट जीडीपी. जस्ट जीडीपी में उस हर जगह लेंगे जहां पर उस जीडीपी को बनाने में, प्रोडक्शन की प्रोसेस में जहां जहां वेयर एंड टेयर हुआ. अब इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बनाने में जहां जहां वेयर एंड टेयर हुआ है, वहां पर आप डेप्रिसिएशन लेंगे तो क्या मिल जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा. कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि ग्रॉस अपने आप में टोटल लेके आगे बढ़ जाता है, राइट. सिंपली टेक्स इनटू कंसिडरेशन टोटल वैल्यू एंड मूव्स फॉरवर्ड, राइट. बट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दिस वैल्यू, राइट, किसी का तो निकाला होगा ना वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज का. सो इस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में अपने आप में डेप्रिसिएशन होगा, वेयर एंड टेयर होगा. ग्रॉस पैरामीटर फेल हो जाता है इसको अकाउंट में लेने के लिए. जैसे ही आप अकाउंट में लोगे, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा नेट. ये है पूरी समरी इसकी. दिस इज सिंपली द लॉजिक. गाइज, विल कंटिन्यू द रिमेनिंग टॉपिक्स इन द नेक्स्ट पार्ट.